أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ مرسلین والمقربین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 169 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انما، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، تاکید کے لیے آتا ہے، اور انما میں اس سے بھی زیادہ تاکید ہے، ما ایکسٹرا تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد جو بات آئے گی وہ بات پکی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ انما یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، یہاں وہ جو ہے اس کی ضمیر جاری ہے شیطان کی طرف، کہ شیطان حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ تو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ سو کا جو روٹ ہے وہ ہے سین واو حمزہ، اور سو کا معنی ہوتا ہے برائی، چھوٹے گناہ کے لیے آتا ہے، صغیرہ گناہ، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے، دنیا میں یا آخرت میں، چاہے وہ دل کو تکلیف دے یا جسم کو، مال برباد ہو جائے یا دوست بچھڑ جائے یا کوئی لاس ہو جائے تو اس سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اسے سو کہتے ہیں۔ فحشا کا روٹ ہے فاحاشین، اور فحشا کہتے ہیں کھلی برائی یا بے حیائی کو، جس کا کرنا اور سننا اور دیکھنا بھی برا ہو، جس کے کرنے سے یا دیکھنے سے یا سننے سے بھی انسان کو تکلیف ہو۔ جیسے جب آپ کوئی نیوز سنتے ہیں کہ کسی کا مرڈر ہو گیا ہے، ایسی نیوز سننے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، مرڈر ہوتے ہوئے دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور مرڈر کرنا تو خیر بری چیز ہے ہی۔ تو فحشا وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی اسی میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بچہ والدین کی بات نہ سن رہا ہو تو دیکھنے اور سننے والے کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا۔ زنا کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، بدنگاہی، گندے الفاظ بولنا، یہ سب فحشا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو بے حیائی ہم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ بھی فحشا کا حصہ ہے۔ اور شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، گناہوں کی طرف لے جائے، چھوٹے اور بڑے گناہ ہم سے کروائے۔ اس نے ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کے ساتھ کیا کیا تھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اور اس کی ڈیٹیلز سورہ الاعراف میں آیت نمبر 20 سے لے کے 22 میں بھی آتی ہے، جس کا ترجمہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھی ان کے سامنے کھول دے، اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندگی نہ پالو۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں، تو ان دونوں کو فریب سے پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئی، اور دونوں نے جنت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے اوپر لپیٹنا چالو کیا۔ ان کے رب نے ان کو پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے کھانے سے منع نہ کیا تھا، اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں کتنی بڑی ہے جنت، دنیا سے تو کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ اب چلیے دنیا کو امیجن کریں، کتنے سارے درخت ہوں گے اس جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک درخت سے روکا تھا، اور اگر وہ دونوں چاہتے تو ہر روز ایک نئے درخت سے بھی کھاتے تو بھی ان کے پاس آپشنز ختم نہیں ہوتے، اور نہ جانے کہاں ہوگا وہ ایک درخت۔ لیکن اس کے باوجود شیطان انہیں پورے جنت میں سے اس ایک درخت کی طرف لے گیا، اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، اور اس کی وجہ سے ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس دنیا میں بھی کتنا کچھ ہے جو حلال ہے، اللہ نے کچھ گنی چنی چیزیں ہیں جس کو حرام قرار دیا ہے۔ شیطان ہمیں ایسا محسوس کرواتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی حرام ہے، یہ اس سے بھی منع کیا گیا، اتنا سب کچھ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ شیطان ہماری پوری توجہ حرام کی طرف لے جاتا ہے،
और कितना कुछ हलाल है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और वो हमें हराम को चुन लेने पर, इख्तियार करने लेने पर वो मजबूर करता है, हमें उकसाता है। कुरान मजीद में आता है, ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, खूबसूरत बना दिए उनके लिए शैतान ने उनके बुरे अमाल। ये है शैतान का अमल, वो हमारे बुरे अमाल हमें खूबसूरत बनाकर दिखाता है। और ये वो कैसे करता है आप देखें, जो बुतों की इबादत करते हैं उन्हें वो कितना बड़ा नेकी का काम लगता है कि नहीं? जो जुआ खेलते हैं, जो शराब पीते हैं, कितना खुश होते हैं वो काम कर कर, और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि आज मैंने जुए में इतने पैसे जीते। या कोई भी बेहयाई का काम लोग करते हैं और उस पर नाज करते हैं, या उसको जस्टिफाई करते हैं कि इस और इस वजह से मुझे करना पड़ता है, मैं ठीक कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं, या उसे नेकी समझते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इस दुनिया की दो अहम लज्जतें हैं, एक है खाना पीना और दूसरा है नफसियाती ख्वाहिशात यानी टेम्पटेशंस। शैतान इन दोनों में से किसी एक के जरिए गुनाह करवाता है और इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अगर इंसान हराम खाना खाता है तो शैतान उससे आसानी से फाहशा, बुराई और बेहयाई की तरफ ले जाता है, और अगर इंसान फाहशा में पड़ जाए तो फिर आसानी से उससे हराम खाना भी शुरू करवा देता है। यानी दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो कहीं हराम तो नहीं है। खाना हलाल हो, और जिस माल से वो खरीदा जा रहा हो वो भी हलाल हो और हलाल तरीकों से कमाया गया हो। और जब हम अल्लाह की हलाल करदा चीजों को खुद पर हराम कर देते हैं तो इससे भी बेहयाई बढ़ती है। आप देखें, जब हमने शादी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है कि लड़का और लड़की के पास ये और ये डिग्री होनी चाहिए, और इतना और उतना वो पढ़े लिखे होने चाहिए, इतनी और उतनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, सिर्फ लड़के की ही नहीं बल्कि लड़की की भी इतनी सैलरी होनी चाहिए, और दोनों अपनी जॉब्स में इस और इस लेवल पे होने चाहिए। तो माँ बाप जब तक बच्चे उस सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच जाते, शादी नहीं करने देते या रिश्ता नहीं करते उनका। कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज में ये है कि लड़का लड़की ने खुद एक दूसरे को कैसे पसंद कर लिया, तुम्हारे लिए लड़का तो मैं पसंद करूंगी, या तुम्हारे लिए लड़की तो मैं पसंद करूंगा, यानी पेरेंट्स का ये कहना होता है। लेकिन अल्लाह ने तो इसे आराम नहीं किया। आप अपनी पसंद के इंसान से शादी कर सकते हो, बस कुछ कंडीशंस हैं। एक ये कि वो मुसलमान होना चाहिए, दूसरा ये कि आप एक डिसेंट तरीके से लड़की को प्रपोज करोगे, शादी के लिए पूछोगे, उसके घर वालों से पूछोगे, और कोई बेहयाई की काम ना किए जाए, तो ये रिश्ता जायज है इस्लाम में। लेकिन हम जब अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को अपने लिए हराम कर देते हैं, तो फिर नो डाउट लड़का लड़की हराम तरीकों की तरफ चले जाते हैं, इंटरनेट पे कोई गलत ऑप्शंस ढूंढते हैं या बेहयाई के कामों में पड़ जाते हैं। वअन तक़ूलू, और ये कि तुम कहो, अलल्लाहि अल्लाह पर, मा जो ला नहीं, ताअलमून तुम जानते। दूसरा शैतान का वार क्या है कि वो तुम्हें अल्लाह के बारे में वो बातें कहने का हुक्म देता है जो तुम नहीं जानते। ये सबसे बड़ा जुर्म है, जैसे अपने मन गढ़ंत फतवे देना, अल्लाह के दीन में अपनी मर्जी का दाखिला देना, या जिसे अल्लाह ने हलाल नहीं किया है उसे हलाल कहना, या जिसे अल्लाह ने हराम नहीं किया है उसे हराम कहना बगैर दलील के, या किसी के लिए कहना कि ये इसे तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, या ये शख्स तो जहन्नमी है। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं किसी भी बात के बारे में कि अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह क्या करने वाला है? आप कैसे अल्लाह के बारे में खुद इतने कॉन्फिडेंस से कुछ भी कह सकते हैं अपनी तरफ से बगैर किसी दलील के? ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये करवाता है शैतान हमसे। और आपने देखा होगा बहुत से लोग अल्लाह के हुक्म के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई इल्म नहीं रखते, फिर भी वो उसके बारे में बोलते हैं।
जैसे अगर किसी से कोई शख्स पूछे कि कोई सवाल पूछे और उसे उसका जवाब नहीं पता हो, वो अपने मन के मुताबिक जो उसे ठीक लगता है वो उसे जवाब दे और फिर वो कहे कि ये बात अल्लाह ने कुरान में कही है या ये कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ऐसे मामलों में जब आपको नहीं पता कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो बेहतर है कि आप मना कर दें, कहें कि मुझे नहीं पता। ऐसे मामलों में खामोश रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपने दिल की, अपने सोच के मुताबिक उसे जवाब दो और कहो कि ये अल्लाह ने कहा है। आयत नंबर 170, व इदा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, इत्तबिऊ, पैरवी करो, माँ, उसकी, जो, अनजला, नाजिल किया, नून जा लाम इसका रूट है, रिवील्ड, अल्लाह, अल्लाह ने, कालू, वो कहते हैं, बल, बल्कि, नत्तबिऊ, हम पैरवी करेंगे, इत्तबिऊ, ताबा आइन इसका रूट है, इत्तिबा करना, पैरवी करना, फॉलो करना, नत्तबिउ, हम पैरवी करेंगे, हम फॉलो करेंगे, माँ, उसकी, जो, अल्फैना, पाया हमने, अलैहि, जिस पर, आबाअना, अपने आबाओ अजदाद को। तो जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो उतारा है अल्लाह ने, यानी कुरान में या किताबों में या रसूलों के जरिए, तो वो कहते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे उसकी जिस पर पाया हमने अपने आबाओ अजदाद को। अल्फैना का रूट है लाम, फाया, वी फाउंड, हमने पाया। अल्फैना का माना समझना बहुत जरूरी है। लफा, लफा कहते हैं किसी चीज के छिलके को या किसी चीज के कुचरे हुए हिस्से को, कुचर कर जो चीज निकालते हैं, जैसे एक गोश्त का बड़ा टुकड़ा हो, बारबेक्यू किया गया हो और उसके ऊपर से कुछ थोड़ा सा कुरच कर जो निकाला गया हो, उस कुचरन को कहते हैं अल्फा, लफा सॉरी। यानी कोई ऐसी मामूली सी हकीर सी चीज जो किसी बेहतरीन चीज का हिस्सा हो और वो आपको मिल जाए, जैसे रास्ते में गिरा हुआ कोई नोट आपको मिल जाए, या ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बस ऐसे ही हकीर सी कोई चीज आपको मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जानते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप और आबाओ अजदाद ऐसे काम कर रहे थे, कुछ रस्में और रिवाज वो फॉलो कर रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई समझ नहीं थी उन्हें उन चीजों की, उन्होंने किया और हम भी करते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो उनको फॉलो करते हैं। हमने तो अपने बुजुर्गों का रास्ता इख्तियार किया है और हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, बदलना भी नहीं चाहते। तो इस लफ्ज अल्फाइना से ये जाहिर होता है कि वो जानते हैं कि इसका कोई सिर पैर नहीं है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और ना ही उनके बाप दादा को पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोई उनसे छोड़ने को कहे तो वो छोड़ना भी नहीं चाहते। अवलऊ, क्या भला, अगरचे, का ना हो, आबाउहुम, उनके आबाओ अजदाद, ला, नहीं, याकिलूना, वो अकल रखते, शैअन, कुछ भी, वला, और ना, यहतदून, वो हिदायत याफ्ता हो। आबा से माना सिर्फ बाप नहीं है, बल्कि बाप, दादा, चाचा, मामा, नाना, सब बड़े बुजुर्ग शामिल हैं इसमें। तो आप देखें कितने ही रस्म रिवाज हैं ऐसे जिन्हें हम फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे, और हमसे अगर पूछा जाए कि तुम ये क्यों करते हो, तो हम कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए देखा है। और अगर हमारे बाप दादाओं से पूछे तो वो भी यही जवाब देंगे कि हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए देखा है। तो किसी को नहीं पता कि ये सब रस्मों रिवाज हम क्यों करते हैं। तो इस आयत के आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला इंसान को हिलाकर, झकझोरकर एक ताकीद के साथ पूछ रहे हैं, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलूना शैअन, क्या भला अगरचे हो तुम्हारे आबाओ अजदाद ना वो अकल रखते कुछ भी, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत याफ्ता हो, क्या तुम उनकी पैरवी करते रहोगे इसके बावजूद भी कि अगर वो नासमझ हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद, और ना ही वो हिदायत पर हो, क्या तुम फिर भी उन्हें फॉलो करते रहोगे। आयत नंबर 171, व मसलू, और मिसाल,
मसलू, मीम सा लाम इसका रूट है, मिसाल का माना होता है एग्जाम्पल, अल्लदीना उनकी जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, का मसली जैसे मिसाल, का माना होता है जैसे, मानिंद मिसाल, अल्लदी उनके है जो यनईकु चीख कर पुकारता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मिसाल पेश कर रहे हैं ऐसे लोगों की, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया ऐसी है जैसे चीख कर पुकारता है, यनईकु जब किसी जानवर को कोई इंसान डायरेक्ट करता है, रास्ता दिखाता है, तो किस तरह से आवाजें निकालता है, उसकी बात हो रही है। बिमा उसे जो ला यस्माऊ नहीं सुनता, इल्ला मगर दुआअन पुकार, व निदाअन और आवाज। निदा का रूट है नून दान वाव और इसका मतलब होता है शाउट या क्राई। तो वो जो कुछ नहीं सुनता सिवाय आवाजों के या पुकारों के, तो ये जानवरों की बात हो रही है। तो कैसे पुकारता है एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को, कैसे वो उसको डायरेक्ट करता है, कैसे वो इशारे से उन्हें कुछ कहीं ले जाता है एक साथ, या उन्हें अपने पास बुलाता है, या खाना खाने के लिए बुलाता है, तो वो कैसे कुछ आवाजें निकालता है, जैसे हे 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 हे, या या रास्ते से गाय को या हम हटाते हैं तो इस तरह से आवाजें निकालते हैं, या कबूतर को जब हम दाना डालते हैं तो हम कहते हैं आ आ आ आ आ। ये जो सारी आवाजें होती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। यनयकू, नून आइन काफ इसका रूट है, टू शाउट, टू कॉल आउट, पुकारना, जानवरों को बुलाना। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम पस वो ला याकिलून नहीं वो अकल रखते। तो जो शख्स ना सुने, ना देखे, ना बोले, तो फिर वो समझेगा क्या? तो इस आयत के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत अहम बात हमें समझाना चाहते हैं एक मिसाल के जरिए, और इस मिसाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ध्यान से सुने। काफिरों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स जानवरों को पुकार रहा हो आवाजें निकाल के, और उनको कुछ समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या कहा जा रहा है। उनको बस आवाजें सुनाई देती है, ना बात समझ में आती है और ना ही पुकार। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कौन बुला रहा है और जानवर किन्हें कहा जा रहा है। तो कुछ मुफस्सिरीन का कहना यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुला रहे हैं दीन की तरफ, और काफिरों का ये हाल है कि वो एक ढीठ जानवर, मवेशी जानवर की तरह है कि ना वो सुनते हैं और ना ही समझते हैं। ये जो माना अभी अभी हमने इस आयत का किया है, ये यहाँ पर ज्यादा सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब मवेशी जानवरों को आवाजें देकर इशारे से बुलाया जाता है तो वो उसको समझते हैं, अपने मालिक की बात मानते भी हैं और करते भी हैं जो उनसे कहा जाता है। जैसे अगर कोई चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को हिक 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 करके रास्ते से हटने के लिए कहता है तो वो रास्ते से हट जाती हैं। अगर उन्हें किसी दूसरी आवाज के जरिए खाना खाने के लिए बुलाता है तो वो आ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ना वो सुनते हैं और ना ही समझते हैं। और दूसरा माना जो किया गया है इस आयत का, और जो मुझे ज्यादा सही लग रहा है, वो ये है कि पुकारने वाले उनके बाप दादा हैं, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आवाजें देकर पुकार रहे हैं, ऐसी आवाजें जिनका कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन वो उनके कहने के मुताबिक इधर और उधर मुड़ जाते हैं बिना सोचे समझे, बेअकल जानवरों की तरह। वो लोग बस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, हर कोई कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम भी फॉलो कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे बस अपने बाप दादाओं को फॉलो कर रहे हैं। तो ये माना बनता है यहाँ पर। तो यहाँ इस आयत में कहा जा रहा है सुम्मुन बुकमुन उमयुन, क्या ये लोग सचमुच बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने जिद्दी हैं, अड़ियल हैं कि सुनना नहीं चाहते इनसे जो कहा जाए, ऐसे हैं जैसे बहरे। जब कोई गलत होते हुए देखें तो उसको उसके बारे में
صحیح بات بولنا نہیں چاہتے، گونگے ہیں، اور جب سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے اندھے ہوں۔ جو انسان بہرا ہو، گونگا ہو اور اندھا ہو، نہ سنے، نہ دیکھے، نہ بولے، ایسا شخص سمجھے گا کیا بات کو؟ تو یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، چاہے کتنی بھی آیتیں اللہ کی آپ انہیں سنائیں، کتنی بھی دلیلیں دیں، وہ سننے والے نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس، جنہیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو صحیح غلط سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے طور طریقوں پر اڑے رہتے ہیں، بدلنا نہیں چاہتے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ آپ ایسے لوگوں سے نا امید نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو کسی دن اسلام کی طرف کھول دے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا طریقہ غلط ہو ان کو بلانے کا اسلام کی طرف، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اور حکمت سے انہیں بلائیں، اپنا طریقہ بدلیں، یا کچھ وقت کے لیے انہیں چھوڑ دیں، بس ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، تو وہ کسی دن بدل جائیں اور اپنی غلط طریقوں کو چھوڑ دیں اور صحیح دین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو دین کا صحیح علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بہت ضروری بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں پر قائم رکھ اور گناہوں سے دور کر دے۔ آمین یا رب۔ الحمد للہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share it with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.